السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج ہم لے کر آئے ہیں اس ویڈیو میں کہ یہودی کیسے دجال کو پکار رہے ہیں اور کیا 2022 دجال کا سال ہے۔ ناظرین گرامی، آج ہم لے کر آئے ہیں کہ یہودی دجال کو کیوں پکارتے ہیں اور یہ دجال کو مسیحا کیوں مانتے ہیں، یہودیوں کا دجال سے کیا رابطہ ہے، کیا کانٹیکٹ ہے اور یہ آخر کار اسے کیوں پکار رہے ہیں، یہ سب معلومات آپ کو معلوم ہوں گی آج کی اس ویڈیو میں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ ناظرین گرامی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسری امتوں پر فضیلت اس لیے حاصل ہے کیونکہ ان کے ہادی اور رہنما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زمانہ آخرت تک کے معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ حدیث کی کتاب کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے پہلو سے لے کر قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں تک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیوں کے بارے میں اور قیامت کے متعلق اپنی امت کو آگاہ فرمایا وہ تو اس طرح سے ہیں: علامت کبریٰ یعنی کہ بڑی نشانی، اور علامت صغریٰ یعنی کہ چھوٹی نشانی، اور تمام علماء دین اس بات پر متفق ہیں کہ ہم آخر زمانے میں داخل ہو چکے ہیں، اور قیامت کی علامت صغریٰ یعنی کہ چھوٹی نشانیاں کافی صورت میں ظاہر ہو گئی، اور وہ وقت تیزی سے قریب آتا جا رہا ہے کہ جب علامت کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اور ہم آج اس ویڈیو میں قیامت کے متعلق ایک بڑی نشانی یعنی دجال سے متعلق بہت ساری معلومات بتائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اسرائیل میں یہودی اپنے اس مسیحا جس کو مسلمان دجال کہتے ہیں اس کی تیاری میں مگن ہیں، اور اس برس دجال کے استقبال کے لیے وہ کن منصوبوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ صہیونی ریاست اسرائیل ایک نئی قدس کی تعمیر پر کام کر رہی ہے، اور اسی منصوبے میں مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا اشتہار انگیز منصوبہ بھی شامل ہے۔ مسجد اقصی کے حوالے سے ان مختلف مراحل میں سے وہ ریاست کام کر رہی ہے، اور ان منصوبوں کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ القدس یعنی بیت المقدس سے اسلام کو ختم کر کے اسے مکمل طور پر یہودیوں کے قبضے میں لایا جا سکے۔ اس منصوبے کا آغاز 2000 میں ہوا تھا، اور اس منصوبے کے تحت اسرائیلی حکومت القدس یعنی بیت المقدس کو عرب اور اسلامی تاریخی شہر کی بجائے خالص یہود شہری شہر میں بدلنے کی نیت رکھتا ہے۔ اسرائیل کے القدس پروگرام کو صہیونی ایک خواب کی شکل میں یعنی کہ یہودی ایک خواب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ القدس کو پوری دنیا کا دارالحکومت بنایا جا رہا ہے، اور عظیم تر یروشلم کے مضمون منصوبوں کے تحت یروشلم یعنی کہ آج کے دور میں جو فلسطین ہے اس میں 10 لاکھ یہودیوں کو آباد کیا جائے گا۔ لیکن ناظرین گرامی، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسرائیل ایسا کرنا کیوں چاہتے ہیں اور یہودی قوم ایسا کرنا کیوں چاہتی ہے؟ ناظرین گرامی، اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں تاریخ کی کتابوں میں جانا پڑے گا اور ان کو جھانکنا پڑے گا۔ یہودیوں کی مقدس کتاب ہدایت کے مطابق دنیا کا یہ فیس 6000 سال پر محیط ہے۔ یہودی سال جیسا کہ ہم نے آپ کو سپٹمبر میں شروع ہوتا ہے، 2017 کی تفشیش کے مطابق سپٹمبر کے مہینے میں یہودیوں کے مطابق دنیا میں اپنے 5778 سال مکمل کر لیے ہیں، اور یہودی عقائد کے مطابق دنیا ختم ہونے میں 200 سال یا اس سے کچھ زیادہ باقی ہیں، اور ان کے مطابق یہ دنیا 200 سال کے اندر مکمل فنا ہو جائے گی۔ اور اس سے پہلے یہودیوں کو 2 اہم کام کرنے ہیں: ایک تابوت سکینہ کی تلاش اور 2 ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے 1000 سال قبل یروشلم میں فتح حاصل کی، اسے اپنی سلطنت، کنگڈم اور ڈیوڈ کا دارالحکومت بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم یعنی بیت المقدس کی بنیاد پر یہودیوں کا ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کروایا اور اسے شروع کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تعمیر
तामीर जारी रखी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक ताबूत था, उसमें पत्थर की वो तख्तियां भी थी जो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कोहे तूर पर नाजिल की थी, और इन तख्तियों पर अल्लाह ताला के 10 अहकाम दर्ज थे। ताबूत में हजरत हारून अलैहिस्सलाम का असा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और वो बर्तन भी मौजूद था जिसमें मन्नो सलवा आते थे। और नाज़रीन गिरामी, रिवायात और तारीख के मुताबिक बताया जाता है अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये ताबूत इसी इबादत गाह की बुनियाद में, क्योंकि आपके दौर में बड़े बड़े जादूगर भी मौजूद थे और आपने अल्लाह ताला के हुक्म पर उन तमाम जादूगरों को कत्ल कर दिया और उस जादू के नुस्खों को भी इसी ताबूत सकीना यानी कि इसी ताबूत में बंद करके इसी इबादत गाह के नीचे गार में छिपा दिया। यहूदी इसी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इबादत गाह को हेकल सुलेमानी कहते हैं। यहूदियों का मानना है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना और इस ताबूत में जो जादुई नुस्खे हैं वो बैतुल मुक़द्दस के अंदर ही कहीं गार में छुपाए रखे थे। चुनांचे ये लोग 3000 साल से बैतुल मुक़द्दस के नीचे गार खोदे जा रहे हैं और ये बैतुल मुक़द्दस को गिराकर हेकल सुलेमानी को यहाँ तक फैलाना चाहते हैं। और यही वो मंसूबा है जिसके लिए वीडियो के शुरुआत में हमने इशारा किया था कि इस मंसूबे का आगाज सन 2000 में बाकायदगी से किया गया था और इजराइल के मंसूबे के तहत इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाना है। यहूदी, ईसाईयत और इस्लामी अकायद के मुताबिक क़यामत से कबल दज्जाल का ज़ुहूर होगा। लेकिन नाज़रीन गिरामी, सबसे ताज्जुब की बात ये कि यहूदी दज्जाल को अपना मसीहा कहते हैं जबकि ईसाई उसे एंटी क्राइस्ट का नाम देते हैं और ये हेकल सुलेमानी की तामीर के बाद ही जाहिर होगा। पूरी दुनिया के यहूदी इजराइल में जमा होंगे। दज्जाल इजराइल को किंगडम ऑफ डेविड डिक्लेयर कर देगा और दुनिया को फतह करना शुरू कर देगा और यही दज्जाल इनके साथ मिलकर पूरी ईसाई और मुसलमानी दुनिया को तबाह व बर्बाद करना चाहेगा। और रिवायत के मुताबिक ये जंग कई साल तक जारी रहेगी। दुनिया मलबे का ढेर बन जाएगी, यहाँ तक कि दुनिया के कदीम तरीन शहर दमिश्क में अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा ज़ुहूर होगा और वो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज अदा करेंगे और फिर ये दोनों दज्जाल के खिलाफ सफ़े आरा हो जाएंगे और एक बहुत बड़ी जंग का आगाज होगा। और यहूदी इस जंग को आरम गिडम कहते हैं और आज वो इसी जंग की तैयारी कर रहे हैं। दज्जाल के इस्तकबाल के लिए वो बैतुल मुक़द्दस को गिराकर वहां तक हेकल सुलेमानी की तोसी करना चाह रहे हैं, क्योंकि दज्जाल जब जाहिर हो तो यहाँ पर किंगडम ऑफ डेविड का ऐलान कर सके और यहूदी उसकी क़यादत में दुनिया को फतेह करना शुरू कर दे। लेकिन नाज़रीन गिरामी, ये तो यहूदी अकायद हैं, लेकिन इस्लामी अकायद कुछ और ही कहते हैं। हमारे अकीदे के मुताबिक मुसलमान ये आखिरी जंग जो होगी उसे जीत जाएंगे। फुतूहात के बाद इस्लामिक रियासत भी बनेगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 45 साल की जिंदगी गुजार कर विशाल फरमाएंगे और इनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया जाएगा। और यहूदी अकायद के मुताबिक ये जंग दज्जाल जीत जाएगा और उसके बाद यरूशलेम के अतराफ में जबले जैतून फटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और ये करामत की पहली निशानी होगी। जबले जैतून पर यहूदी दफन होना एक एजाज समझते हैं। यहूदी दिन में 3 बार दज्जाल की आमद की दुआ करते हैं और वो ये दुआ शमूने असर कहलाती है और ये लोग अब बिलाशुबा कयामत की पुकार सुन रहे हैं और हर रोज ये दिन में 3 बार शामूने असर करते हैं, यानी कि दज्जाल को पुकारते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं, उसकी आमद की दुआ करते हैं और ऊंची आवाज में अभी भी ये दज्जाल को पुकार रहे हैं। चुनांचे ये आवाज सुनने की देर है कि दुनिया चक्की के 2 पार्टों के दरमियान पिस कर बराबर हो जाएगी। जिन लोगों के दिल ईमान से भरे हुए हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावेदार हैं, उन्हें तो इस पूरी सूरत हाल से कोई परेशानी नहीं होगी और कोई भी मुसीबत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब कुछ होकर रहेगा और आखिरकार फतेह मुसलमान और ईमान वालों की ही होगी। लेकिन आने वाले साल की होलनाकी का अंदाज़ा लगाते हुए अहले नज़र ये कहते हैं कि तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला से जितनी चाहे माफ़ी मांग लें, जितनी सुख की सांस ले सकते हैं ले लें और जितना इस्तग़फ़ार कर सकते हैं कर लें और अल्लाह तबारक व तआला का जितना शुक्र अदा कर
सकते हैं कर लें, क्योंकि खतरे की घंटी बज चुकी है। बस अब एक धमाके की देर है और दुनिया में इख्तिताम का आगाज शुरू हो जाएगा और हम अपनी आंखों से दुनिया को खिजा के पत्तों की तरह उड़ता हुआ देखेंगे। चुनांचे हमारी अल्लाह तबारक व तआला से हर वक्त यही दुआ रहनी चाहिए कि जब तक हम जिंदा हैं हमारी हर सांस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की तकलीद ही में गुजरे, और जब हमारा इस जहां से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा खात्मा ईमान पर हो। नाज़रीन, अगर आपकी भी यही ख्वाहिश है तो आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा। नाज़रीन, ये थी मालूमात यहूदी दज्जाल को क्यों पुकार रहे हैं और यहूदी दिन में 3 बार दज्जाल को क्यों पुकारते हैं और वो क्या क्या कहकर पुकारते हैं, ये भी आपको पता चल गया होगा। और इनका दज्जाल से क्या रिश्ता है ये भी आपको पता चल गया होगा। एक ज़रूरी इत्तला, अगर आप भी किसी बुजुर्ग या औलिया अल्लाह का वाक़या हमारे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम उन बुजुर्ग का वाक़या, करामत या कोई मालूमात पेश करें, तो आप कमेंट्स में हमें उनके बारे में बता सकते हैं। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो हमारी ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए नीचे रेड बटन पर क्लिक करके साथ में लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि मज़ीद इसी तरह की अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।